नमस्कार मित्रों, आज हमारे सत्याग्रह के इस सत्र में आज हम लोगों का टॉपिक है कि सबको सबका दहन करना उचित है या उनको जो है जिस तरीके से कब्र में दफना देना ज़्यादा ठीक है। क्योंकि आज केवल ये धार्मिक आस्था की बात नहीं है, बल्कि इसका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है ये सोचना भी बहुत जरूरी हो गया है। तो आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर पूर्णिमा हैं जो लिंगायत समुदाय से हैं, और दूसरे हमारे साथ हैं अभय जैन जी। तो हम अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं सत्याग्रह के सत्र में, और हम डॉक्टर पूर्णिमा जी से जानना चाहते हैं कि इस विषय पे उनका क्या टेक है, और वो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं और फिर बताएं कि आज के इन्वायरमेंटल क्राइसिस के दौर में कौन सा तरीका ज़्यादा सही होगा। तो डॉक्टर पूर्णिमा प्लीज आप। So namaste sir, this is Dr. Poonima. I work in SRMS Institute of Medical Sciences, Bareilly. I teach physiology. I'm a professor of physiology. Actually in our community they do this burial, and I believe burial is better than cremation, because burial is much cheaper than cremation. You don't have to, you don't need any wood or anything. You can bury the body, and it does not cause any pollution. That is one point. And only problem is the space. That is the main problem. So actually in our religion, what they say is, if you you should not build any monuments. After a certain number of years, the same land has to be used for burying other people. After a certain number of years, you give till the degeneration of the body is complete, then we can use the same land for other people. In that way, we don't need more and more space. So that is how I feel this is a better way. लेकिन मतलब क्या अड़चन है, क्योंकि हमारे रिचुअल्स हैं और एक परंपरा चली आ रही है बहुत लंबे समय से, तो ये देखा गया है कि जल्दी लोग अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न तो है, लेकिन इसके अलावा किस तरीके से उनको समझाया जाए, क्योंकि मैंने लखनऊ में भी देखा कि जो म्यूचुअल ग्राउंड है वहाँ पर कि दूसरे भी तरीके हैं, जैसे इलेक्ट्रिक से भी जलाया जा सकता है या गैस के माध्यम से जलाया जा सकता है, लेकिन वो लोग उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। वो अभी भी उसी तरीके से लकड़ी की चिता बनाकर अपने परिजनों का सब को जलाते हैं। तो इस परंपरा में Sir, even electric crematorium will cause pollution. That is also a concern, and it uses a lot of energy. I know, sir, it is very difficult to change your ways. That is understandable. But I think according to times and need, we need to change. Because in Western countries, actually they bury the body, but now they have started cremating more, because they are finding shortage of space and it is very expensive for them. Because what they are doing is they are embalming the body, and then they are keeping the body some days in the funeral homes, and then they have to buy an expensive casket or the box to bury the body, which is air proof. So all these things will cost a lot of money for them, and they have to maintain that place also. They have to pay money. So most of the people are not able to afford that space. That is why most of them are now gradually the number of people, the percentage of people who prefer cremation is increasing. So they're changing in that way. Actually, the Christians believe that the body and soul are together as one unit, unlike us. So they want to preserve the body also. But these days they are changing their ways, because that is a better way in that country.
So now they're talking about green burial, which in India we are already doing that green burial. We don't use any caskets and we allow the body to merge with the soil without any problem. Expenses are involved there. It is a very simple process. We bury within 24 hours, and that way it is a, we can call our burial as green burial. Yeah, actually, according to, I think, even in others also, it is the same. We believe that you must be aware of that. I'm sure you know about the concept of Panchabhutas. So we have come from these elements and we are going back to the same elements. That is the concept. Like we have come from these 5 elements, what they talk about, that Prithvi, Vayu, Jala, Agni, and Akasha. So that is what they believe. So the same way it has to go. In our religion also, we have come from the soil and we have to go back to the soil. That is the concept, and our body will be useful to some other organisms. It is not going to be wasted. It is going to be utilized and it nourishes the earth so that the earth can grow more, plants or trees. So in that way, it is more environmentally friendly. जी, तो लेकिन जैसे हमारे धर्म में ये समझा जाता है, या जितना मुझे समझ में आता है कि लोगों की ये मान्यता है कि जो आत्मा को मोक्ष तब तक नहीं मिलता है जब तक उसका शरीर से अटैचमेंट रहता है। तो वो उसको जला करके उस चीज को ये एश्योर करना चाहते हैं कि अब क्योंकि बॉडी नहीं है तो इसलिए कोई अटैचमेंट नहीं है और इसलिए वो जो है उस सोल को मुक्ति मिल जाती है। तो और दुनिया में तमाम तरीके के अलग अलग मेथड हैं, बरी करते हैं। और तो हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अभय जैन जी। तो हम चाहते हैं कि अभय जैन जी भी अपना विचार प्रस्तुत करें कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। अभय जैन जी। Good evening, everyone. I would like to start from the significance of burial in Indian society. How the burial is so not burial, but cremation. Why the practice of cremation is so significant in our Indian society, especially among Hindus, Jains, and Sikhs. So and Buddhists as well. So the history of burial, history of cremation, it goes back to Rig Veda. In Rig Veda, it is mentioned that the priest, a Brahmin priest or an adult member of the family, he has to recite a mantra, and the mantra goes like this: that the mantra asks Agni to carry this man to heaven. So the Agni element is very much important in this respect, because the Rig Veda is considered as standard of Hinduism. And yeah, in Hinduism, it's the soul and the body, they are considered to be separate from each other. And this Agni is considered as a way to divide the soul from the body, so that the soul becomes free and it is able to reincarnate either to heaven or to the next birth, because Hinduism also believes in recurring birth. And traditionally, it was this burning process, the cremation was limited to upper caste Hindus because it was expensive and it was seen as a kind of privilege to burn a person. So it helped to demarcate Hindus from Christians, Muslims, and even so-called lower caste Hindus, because they were generally buried. And there is a crucial traditional ritual known as Kapal Kriya in Hinduism. And in systems like electric cremation, it is not possible to perform such kriyas. But the electric cremation system, they are really environment friendly because they don't require any kind of wood. So the greenhouse gases and all the hazardous gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, they are not produced in these electric cremation systems. And I would also like to talk about the hazards that cremation process causes. First of all, it's very obvious: deforestation. A lot of
wood is required in order to burn a dead body. According to some estimates, it requires around 200 to 250 kilos of wood just to burn a single body. And according to some estimates, 60 million trees in India are cut annually just for the process of cremation. And apart from deforestation, it also adds to greenhouse gases in environment like carbon dioxide and other hazardous gases like nitrous oxide, sulfur dioxide, volatile organic compounds. All these things are added to the atmosphere, which makes our atmosphere really polluted. And then there are some things in a human body like mercury, and some people have pacemakers and all those things. And when a body is burnt, then all these elements they prove to be hazardous to not only the people who are cremating the body, whose job is to cremate the body, but also to the nearby residents in these places. And the ashes, a lot of ashes are produced when we burn a body. Usually these ashes are poured into rivers. So apart from air pollution and deforestation, it also pollutes the rivers like Ganga and all those. According to an estimate, around 5 million ton of ash is produced annually in India from this cremation process, and most of this ash goes to rivers. So this is another hazard due to this cremation process. And I would also like to talk about alternatives to this cremation process. One is the obvious green burial that Mrs. Purnima has said. And then because it produces, it requires no wood, it requires no fuel, and the body is transformed into soil. And a lot of people, a lot of tribes in India, like Gonds, who were initially forest dwellers, but they were eventually Sanskritized and assimilated in Hindu society. Then they started using this cremation process, but now they are going back to burials. They call it to the burial system. And the main reason that they are going back to burial system is because they are forest dwellers and they are very near to the environment and they care about the environment. That's why they are going back to burial system to reduce the cutting of trees, to reduce the eradication of forests in India. And one more alternative apart from this green burial is it's very controversial and it's not legal anywhere, but we can we can look into it from utilitarian perspective, that is human composting, because livestock composting has been followed by farmers since ages. And what happens is that the body of the livestock is mixed with water and some bacteria and all those culture, and then it's put into the ground, and after 30 days it produces around a cubic yard of soil. So it's helpful, it's utilitarian, but it's not legal anywhere. But we, as a scientific perspective and as a utilitarian perspective, we can look into it as well. And then there are some green cremation systems in India, and Delhi based NGO named Mokshda, it's looking into some, it says developed a green cremation system where it uses some kind of chimney and some kind of metal structure. It's similar to oven, where a body is put using a metal tray which is the size of a body, and below that metal tray some wood or some amber is put to fire. It uses less wood and it burns the body in less time, and consequently it also produces less pollution. So these green cremation system must also be looked into, especially in these times when a lot of people are dying due to COVID, and when people are also becoming ethical and more environmentally conscious. So these systems should be promoted so that people have a choice that how they want to get buried, or they want to get cremated, or which afterlife what they want to, to be done to their body. हेलो। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि क्या क्या और तरीके हो सकते हैं और किस तरीके से जो हमारा परंपरा
तरीका है कि जलाने का, उसमें भी कुछ NGOs ने, जैसे भी आपने बताया कि मोक्षदा ग्रीन क्रीमेशन सिस्टम है, जिसमें कि अंशुल, क्या नाम बताया था आपने, अंशुल जी, कोई अंशुल गर्ग जी, उनका NGO जो है इस तरीके का काम कर रहा है। और लखनऊ पे भी क्रीमेशन ग्राउंड पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो लोहे के ट्रे में बॉडी को रखते हैं और उसको बाउंड करते हैं। तो उसको लोग थोड़ा सा प्रिफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे रिचुअल्स हैं वो भी परफॉर्म करने की गुंजाइश रहती है। तो इसके अलावा जो है मैंने कुछ पढ़ा है कि कुछ और भी लोग तरह तरीके से इसमें प्रयोग कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्री में तो बाकायदा इसकी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है कि किस तरीके से आप अपने लव वंस को लास्ट बाय कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं इसके। तो लेकिन भारत में अभी भी मुख्यतः ये जो है वो लकड़ी की चिता जला के हिंदू सिस्टम में इसी तरीके से हो रहा है। और जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, और पहले से ही पेड़ों पर मतलब हमारे इन्वायरमेंट पे इतना बड़ा खतरा है, और इस सिस्टम को बदलने के लिए क्या और किया जा सकता है। तो हम अपने जो मेहमान हैं उनसे जानना चाहेंगे कि इस दिशा में क्या कुछ, जैसे कि एक NGO का नाम इन्होंने बताया अभय जी ने, लेकिन इसके अलावा क्या और भी कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो आपकी जानकारी में हो, और जिससे कि ये इस सिस्टम से अलग हटकर या कुछ और भी प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट बचाया जा सके, या ग्रीनर क्रीमेशन सिस्टम कुछ और डेवलप हो रहा है। अगर इस तरीके का कोई आप और जानकारी देना चाहें हमारे गेस्ट्स में से या हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, तो जरूर वो जानकारी शेयर करें हमारे साथ। इसमें मैं प्रवीण जी कुछ सवाल कर लेता हूँ अभय से। जी जी। अभय ये बताएं कि आपने कहा कि इलेक्ट्रिक क्रोमेटोरियम से पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये बात सही है कि वहां पे नहीं होता है जहां पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, लेकिन जो बिजली आप बना रहे हैं इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के लिए, वो भी तो कहीं पे आप कोयला जला रहे हैं ना, तो ये आप नहीं कह सकते कि उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो पोल्यूशन हो ही रहा है। और एक सवाल ये है, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि आपने हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम और क्रिश्चियन का तो जिक्र हुआ कि ये इनके क्या प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन दुनिया में और भी कुछ रिलीजन है, जरा उनकी भी प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए। और फ्रॉम डॉक्टर पूर्णिमा आई वांट टू नो the history of Lingayat religion, because they are ultimately worshippers of Shiva, and Shiva is a Hindu god, but Lingayats consider themselves to be non-Hindu. So what is the history and how long has this community existed? So either of you can go first. Sir, can I respond to this? Yeah, you go ahead. Yeah. Sir, actually, this religion or dharma we call, that started in 12th century. That is Basaveshwara was a person who was a Brahmin, and he felt there were so many things what they are doing is not right. That is why he started a different religion. Some of the things he was not happy with was women are not allowed to do puja. So and the other thing is women has to sit outside the house 3 days of the monthly period time. So that is also not there in our religion. So in that way, he changed some of the things. And if you say Sanskrit shlokas in the rituals, it is not understood by the common people. So he said we should make in the local language. He started making 4-line couplets, or what you call as vachanas, in the local language. So which is understood by everybody what exactly they're talking. So these are some of the things. So in many respects, we are very different from the Vedic religion. That is the reason I think we say that we are not Hindus. I think Hindus was a religion compiled by Britishers just to classify all the other people put together other than Muslims and Christians.
but actually it is a very different kind of people are there who practice, whose practices are very different in terms of which god they worship, and their rituals are very different actually. And we don't really do worship Shiva. It is we just call it as a god, but we call by the name of Shiva. That's it. We believe it, there is one God. So it is a universal God, and we see the God in the form of linga. And this linga we wear on our body. We are supposed to wear always on our body. So when the God is with us, we are supposed to keep the body clean. And we are not supposed to go to any temples. And we believe that the body is the temple, and the God resides within us, to remind that we always wear the God. And there is a small we wear it on our body, and inside that small box like thing which is made of silver and metal, we use it, and we open that and put the lingu on the hand and worship, do puja for it. There is no actual form for that. It's just a round structure. So this practice of burying rather than burning, is it associated with that religion from the beginning? Yeah, from the beginning. I think that was one of the reforms Basaveshwara did. Okay, and that is in 12th century. In 12th century, and he has to face a lot of opposition by the local people, and finally I think he was killed. Nobody knows how exactly he died. He died at a very short age. I think he was 36 years or something. He was a designation. He was in a very good post with the king. King Bijala, he was in a very good post. Treasurer or something he was. So he was a powerful person. He's a well-educated person, and he comes from Brahmin community, and he felt certain things were not right in that community. So he changed it, and he included anybody and everybody from any religion into this particular religion. In any lower caste people also he included. It does not matter who they are, as long as they practice the rules or whatever our this thing follows. So they can be converted and they can become lingayats. Okay, thank you. So Abhay, would you like to answer my question here? Yes, sir. So you talked about pollution at other places, pollution where the electricity is being made. So I think it is there has not been a comparative study which I've seen which compares the amount of pollution because it just compares the amount of pollution at the point of cremation. So it says that electricity is used, so it's clean fuel and no kind of hazardous gases like carbon dioxide, carbon monoxide is produced. So it just compares at the point of cremation, but it does not look into the aspect of where the electricity is produced. And the electricity is also produced from various kind of fuels like CNG, and coal is the major component which goes into electricity production. Yeah, and now there is an effort to stop making coal-based power plants. Most of the world, in fact, Europe and United States and Japan, I think, who have decided that by 2050 they will become. At least Europe has decided that they will become a low carbon society. They are now not going to install any more carbon-based, coal-based power plants. But in India, we are still, establishing coal-based power plants. But if countries like Europe and US, if they pledge to produce electricity without coal, without zero emission, and cremation is a major form of, I think cremation is the number one form of afterlife procedure in US and Europe. If these countries
move away from coal and try to make electricity in an environmental friendly way, then I think electric cremation will be zero pollution in that case. And you also talked about, but India, we are talking about International Solar Alliance and all those things that will create electricity from solar. But there has not been a comparative study in India regarding uh, what kind of pollution is made at the source of generation, because everything is not systematic. Electric production in India, it has major sources, thermal power plant, which are themselves very polluting. So there needs, if I come across some study which kind of compares the pollution in both electric and both this traditional method with respect to the whole chain and not just at the point of cremation, then I'll come. I'll let you know about it. And you also talked about other religions. So I'm not very. I don't know much about how other religions are tackling this problem, but I have read about Parsis. And Tibetan Buddhists. So the Tibetan Buddhists, what they do is, because the terrain there, it's not possible either to bury because of the rocky terrain, and it's not possible to cremate them because there are no trees. So what they do is, and Parsi also do a similar practice. What they do is, they take the body and then they put it on some high elevation, and the eagles and vultures, they eat the body. And what the Tibetan Buddhists believe, that although it may sound to be uncivilized, but what the Tibetan Buddhists and barbaric practice, but what the Tibetan Buddhists believe is that human in his lifetime he has consumed meat, and after his death he has an obligation to give back that meat to the other organisms. So these two practices I am aware, besides Hindus, Jains, and Sikhs. When you say that the Western society is moving towards cremation from burial, do you mean electric crematorium or any other method? They use a similar cremation like we use in India, but it's not open. In India, it's kind of open space cremation, producing. Uh, it looks producing fumes and everything, but in European system and in American system, the crematoriums are closed space with chimneys, and it looks like some kind of industrial setup, but it's similar to our system using wood and. But that must also be producing ash. And Yes, what do they do with the ash? I mean, there are some people throw it in rivers or sea, even in sea, and there are some innovative methods right now for doing something with ash. Like uh, one is, they make diamonds out of that ash because body consists primarily of carbon, and there are some innovative methods, like people are putting the ash in some kind of capsule, and then they are giving it, launching it into space or putting it into sea. But traditionally, I am not aware what they are actually doing with that ash. Okay. So Manoj Sarangji has joined from Kerala. Manoj bhai, you want to ask any question or you want to say anything on this topic of whether it is better to bury or burn a dead body? You have to unmute yourself if you want to speak. We support this cremation. Yeah, because, I know that is a standard practice among Hindus, but we are saying it is environmentally polluting. Yeah, but now there are electric crematoriums in almost all municipalities and even panchayats in Kerala, and there are some crematoriums operated by GIAs also. Yeah, but the problem is, we were just discussing before you came. Yeah. That crematorium, there may not be any pollution at the point of cremation, but after all, you are producing electricity by burning coal. In India, coal is the major source of electricity. Yes, even yes, now. yes. I think about 78% of electricity comes from coal, burning coal in thermal power plants. So you are creating pollution somewhere else. Yes, I know.
But I think that we can think of this solar power or some other alternative system. Yeah, that will come in long term. But right now we are burning coal to use our electricity in India at least. In Kerala, these hydroelectric projects are more common in Kerala, but we are not producing the need up to our need. We are also purchasing it from the central pool. Yeah. So the coal will be used here also. Yeah. So, question to Purnima ji. Do the graveyards of Lingayat look similar to the graveyards of Christians and Muslims? You have designated places where you bury people, or you can bury it anywhere? In your agricultural field, in your home, can you bury anywhere, or you have to go to one specific location? Sir, we do both, sir. One is what is called as Rudra Bhumis are there in the somewhere near the city, where that particular religion will go and bury their people there, or people who have their own lands, like some agricultural land. So they put in the agricultural land also, they bury. And actually, we are not supposed to build any monument or anything on that, so that it can be used later. Otherwise, any amount of space will not be enough. So that is the. Yeah, actually, I asked this question because I have an ashram 60 kilometers outside Lucknow, and I was surprised to see that some of the villagers who were from either a scheduled caste community or a poor OBC community, they bury the dead in their agricultural field itself. They don't take the body to any river or anywhere else. They just bury it in the agricultural field. And in Kanpur, I have seen poor people going and dropping the dead body in Ganga itself, so because they don't have the money to do the cremation or or to dispose of the body by any other method. So they find it easier to just drop it in the water, and then they expect the fishes and the other water life to take care of it. Sir, they don't have any designated land also, sir. Dalit communities and all, they don't have their own designated land, nor they own the land to bury them, their people. Oh, okay, that might be a problem. That Dalits are not allowed Actually, Yes. Dalits are not allowed to. Actually, burying in their land is a privilege. Only rich people can afford to do that. Yeah, that I did not think of. So maybe it is that the Dalits are not allowed to bring their bodies to the cremation ground. Or they don't have a cremation ground as such. Their own religion cremation ground is not there, and so other people will not allow. So it is difficult for them. Sir, I want to add a point to this discussion. एक अभय जी, अच्छा आप थोड़ी सी बात हिंदी में रख दीजिएगा, क्योंकि हमारे अनिल मिश्रा जी भी आ गए हैं, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझ में आती है। और ये बताइए, जो आप कंपोस्टिंग की बात कर रहे थे, तो ये कंपोस्टिंग में क्या बॉडी को बहुत गहरा नहीं खोद के दबाते हैं? मतलब वो क्या जमीन से कम दूरी पे ही गाड़ देते हैं, या क्या है? मतलब हाउ इज सी, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप किसी मृत शरीर को गाड़ते हैं जमीन में, तो वो तो सड़ गल के मिट्टी में मिल ही जाएगा। बल्कि आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जब कोई मरता है इस इलाके में, मुझे मालूम नहीं ये सिर्फ इसी इलाके के लिए है या दूसरे इलाकों में भी ऐसा ही कहते हैं, कोई अगर मरता है तो कहते हैं मिट्टी हो गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो था आदमी या औरत जो भी, अब वो जिंदा नहीं है और अब वो मतलब मिट्टी बन गया है। तो इसका मतलब तो यही है कि उसको मिट्टी में गाड़ेंगे तो वो मिट्टी का हिस्सा हो जाएगा। तो वो उसको आमतौर पे जब गाड़ा जाता है तो थोड़ा गहरा खोद के गाड़ते हैं। ये कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, कितना गहरा गाड़ते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। सर, कंपोस्टिंग में गहराई का तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे कंपोस्टिंग और नॉर्मल बरियल में ये डिफरेंस है कि कंपोस्टिंग में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको उस
डेड बॉडी में ऐड कर दिया जाता है, ताकि जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाए, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स हैं वो बॉडी पे एक्ट करेंगे तो फिर वो डिके जल्दी हो जाएगी बॉडी। तो कंपोस्टिंग और नॉर्मल बरियल में ये अंतर है कि कंपोस्टिंग का जो एम है वो, नॉर्मल बरियल का एम जो होता है कि मरने के बाद सोल और बॉडी का जो कि मतलब जो भी अलग अलग रिलीजन्स में है कि बॉडी को प्रिजर्व रखना एक एम रहता है, पर कंपोस्टिंग का एम ये रहता है कि बॉडी को सॉइल में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स को, जिससे जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, उसको ऐड किया जाता है। और मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि मैं जब इस विषय के बारे में पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो मुझे कोई सिस्टमैटिक स्टडी नहीं मिली इस चीज़ पर कि पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक क्रीमेशन और जो ट्रेडिशनल क्रीमेशन है इनका कंपैरिजन, कि इलेक्ट्रिक क्रीमेशन में कितना पोल्यूशन होता है और नॉर्मल क्रीमेशन में कितना होता है। तो मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो ऐसी एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाए जिससे इन दोनों को कंपेयर किया जाए साइंटिफिक टर्म्स पे, ताकि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े। अगर वो लोग साइड बाय साइड देख सकें कि इसमें इतना पोल्यूशन हो रहा है, इसमें इतना पोल्यूशन हो रहा है। नहीं, ये आपका पॉइंट अच्छा है। ये स्टडी करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम और इसमें कितना पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और इसमें हम बरियल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एक तो ग्रीन बरियल होता है जो ज्यादातर मुस्लिम समाज में फॉलो किया जाता है, जिसमें सिर्फ बॉडी को दफनाया जाता है, और एक जो क्रिश्चियनिटी में और वेस्टर्न सोसाइटी में होता है बरियल, जिसमें अलग अलग तरीके के एम्बालमेंट्स बॉडी पे लगाए जाते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, और कैस्केट यूज करते हैं। तो इन सब की एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, ताकि इससे ना सिर्फ इंडिया के लोग बल्कि और विदेशों के लोग भी जागरूक हों कि ये इन सब चीजों से ये फायदे हैं, ये नुकसान। जी सर, मैं भी इसमें, मुझे अभी एक बात इसमें स्ट्राइक की है कि ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है तो है ही, इसके अलावा इसका एक बिजनेस एस्पेक्ट भी है। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में जो है ये जो रिचुअल्स हैं इसके बाकायदा एक अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, और बहुत से लोगों की रोजी रोटी इसी पे डिपेंड करती है। तो अब कभी सब रिजल्ट ग्राउंड पे जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है पूरा एक बिजनेस का सेटअप है। लास्ट जो क्रिमेशन कराते हैं, हर तरीके के रिचुअल के पैसे चार्जेस होते हैं, तो वो उसको बनाए भी रखना चाहते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि जो बहुत गरीब लोग हैं गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं, तो वो इस तरीके से मतलब वो अगर ना भी चाहें कि हम कोई रिचुअल नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी अस्थि ऐसे ही गंगा में विसर्जित कर दें, तो वो उनको करने नहीं देते हैं। उनको वहाँ से भगा देते हैं या जबरदस्ती कुछ ना कुछ पैसे उनसे वसूल लेते हैं। तो ये अगर ये परंपरा खत्म होगी तो बहुत इस तरीके की भी बातें खत्म हो जाएंगी, जो इसके साथ एक बिजनेस सा, एक धंधा सा चलता है, और वो मतलब बहुत बड़ा एक बिजनेस है। ये भी एक बात है, और उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल प्रिविलेज क्लासेस को ही इस पे उसका एक आधिपत्य है, और गरीब लोग, जैसे आपने कहा भी कि अपने गांव में खेतों में ही दफना देते हैं या नदी में शरीर बहा देते हैं। और नदी में भी बहाना, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इन्वायरमेंटल कोई ऐसा वो नहीं पैदा होता है, क्योंकि जो जलचर हैं, जीव जंतु हैं, वो उस बॉडी को खा लेते हैं, तो उसमें तो किसी प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं होता है उसका। जी जी, नहीं आपकी बात सही है। और मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कि इस कोरोना के दौर में तो आप सुन रहे हैं कि पंडित लोग भी वहां पे आपको नहीं मिल रहे हैं शमशान घाट पे, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। तो ज्यादातर जगह जो लोग शरीर को जला रहे हैं, जो ज्यादातर दलित हैं, उनसे कह दिया जा रहा है कि भैया तुम ये मंत्र पढ़ दो। हाँ, तो ये पूरा क्रियाकर्म का काम जो है ये ज्यादातर इस समय दलित लोग कर रहे हैं। और वो जब अभी मेरे ख्याल से 12 अप्रैल को मेरे मामा जी की मृत्यु हुई थी, और हम लोग यहाँ लखनऊ में गए जब शमशान घाट पे, तो उसको लकड़ी वकड़ी में जब रख दिया गया शव, और करीब 7-8 चिताएं तैयार हो गई, तो मैं देख रहा था वहां पे कर्मचारी थे जो मतलब जो रिश्तेदार थे वो तो आ ही नहीं रहे थे, और जब वो
जब वो हमारे मामा जी का जलाने का टाइम आया तो उसने पूछा कि भाई आप में से कोई अग्नि देगा, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे रिश्तेदार गए थे वो, मैं तो बल्कि तैयार था देने के लिए, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको कर दो, ऐसे ही कर दो। लोग इतना डरे हुए हैं कि वो अग्नि भी नहीं दे रहे हैं अपने जो मृत जन है उनको। और फिर अंत में वो कर्मचारी को ही करना पड़ा, और वो कह रहा था कि हमने पता नहीं क्या पाप किया था कि आज हम सुबह से अभी तक 50 लोगों को जला चुके हैं। तो ये स्थिति आ गई है। तो वो जो आप कह रहे थे रोजी रोटी वाला मामला, वो तो वैसे भी इस समय नहीं चल रहा है, क्योंकि वो घबरा के भाग गए जो रोजी रोटी वाले। लेकिन सर वो चार्जेस वही करते हैं, वो उन लोगों को भेज देते हैं करने के लिए, क्योंकि हाँ। मैंने एक बार शमशान में अगर जाना पड़ा, इस तरीके की डेथ हुई फैमिली में कुछ लोगों की, तो वो बस वो आपने सही कहा कि जो लोग पहले लकड़ी वगैरह केवल लगाने का काम करते थे, वही लोग जलवा भी देते हैं, और उनको 2-4 टाइम उन्होंने मंत्र रटा रखे हैं कि क्या है, वो पढ़ भी देते हैं। जी जी। ये भी एक एंगल है इसका, इस तरीके से जो हमारे रिचुअल्स हैं और जो परंपरा चली आ रही है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि उसको बनाए रखना चाहते हैं वो। जी और जी। सही बात है कि वो जो नेचुरल, मतलब जब कोई धर्म नहीं पैदा हुए थे, जो नेचुरल प्रोसेस था, या हम एनिमल्स में भी देखते हैं कि वो अपने जो डेड बॉडी है उनको जमीन के अंदर दबा देते हैं, उसी तरीके से वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जी जी। और अब ये कुछ परंपरा, कुछ नए एक तरीका आया है कि वो बॉडी को इस तरीके से बनाते हैं, एक बीज के रूप में उसको डेवलप करके, और फिर वो पेड़ बन जाता है उसका। ऐसा भी ये एक ऑफर देती है कि आपके जो डेड बॉडी है वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, उस तरीके का एक सा बना देते हैं बॉडी। उसका क्या बना देते हैं, मैं समझा नहीं। मतलब वो एक अंडे नुमा रचना बनाते हैं जिसमें बॉडी उसी के अंदर रहती है, तो वो अच्छा। डिकम्पोज हो जाती है, और उसके ऊपर एक पेड़ लगा देते हैं। पेड़ लगा, हाँ। असल में मैंने ये तरीका देखा है बाबा आमटे के आश्रम में, आनंद, पूना से करीब 100 किलोमीटर दूर है। वहां पे वो कोई भी मरता है चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको जमीन में गाड़ते हैं और ऊपर एक पौधा लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप जाते जाते और लकड़ी मत ले जाइए अपने साथ, बल्कि आप और लकड़ी दे के जाइए। तो वो एक पौधा लगा देते हैं, ऊपर कोई वो समाधि वगैरह नहीं बनाई जाती है। तो ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा। तो इसके बारे में और कुछ कोई कहना चाहेगा? आज हम लोग बहस कर रहे हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके शरीर को दफनाना ठीक है या जलाना ठीक है। और हमारे अभय जी ने बताया कि जो तिब्बतन बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, तिब्बती लोग, और जो पारसी लोग हैं, वो तो ये मानते हैं कि शरीर को ऐसे ही छोड़ दीजिए और चिड़िया उड़िया खा जाएगी, तो कम से कम उनको भोजन मिल जाएगा। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो इसके बारे में और कोई कहना चाहे? अनिल जी, जी जी भैया, हम थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। हाँ बताइए। अच्छा अनिल जी जरा ये अनिल जी जरा ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं और जो और गरीब हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे अंतिम संस्कार करते हैं? जी भैया, जी 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 बताइए भैया। दो तरीके हैं। एक तो हम अपनी पहले मिसेज से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो हमने देखा और हमने भोगता उसको। तो उसमें हुआ ये कि गंगा पर गए परियर, और परियर जाने के बाद हुआ ये कि धानुक बिरादरी के लोग थे, दलित ही मान लो उनको, उन लोगों ने थोड़ा सहयोग दिया, जो चिता बनाई गई। मैंने दूर से ही देखा था ये परिस्थिति। अब की बार जब हमने खुद प्रयोग किया और हमें ही प्रैक्टिकल करना पड़ा उसका, तब मेरी सब समझ में आया। तो पहले कुछ पंडा ने मंत्र पढ़ा, और इसके बाद फिर वो दलित साथ, और चिता जब तैयार हुई तो उन्होंने उसको जलवाया, जलवाने में सहयोग किया। और चिता में आग हमने ही आग दी, और जब जलकर तैयार हुई तब वो हिसाब मांगने लगे। तो मैं 500 रुपए दे रहा था, आधे घंटे का काम था, तो वो मुझसे लड़ गए दोनों। इधर मैं रो रहा था, उधर वो लड़ गए। तो मेरे बेटे बोले कि इनसे बहस मत करो, जो वो कह रहे हो दे दो। तो 1000 में भी तय नहीं हुए, तो 1500 दिए।
और 1500 देने के बाद जब वहां से वापस हुए तो जो पंडा था वो दूसरी जगह अपने मंत्र पढ़ रहा था, वहां मंत्र पढ़ाया, क्योंकि जो घाट होता है जहां पर स्नान करने के लिए कहा जाता है, वहां इतनी गंदगी होती है गंगा में जहां पर ये कार्यक्रम करते हैं। अंदर जब नहाने गए तो वहां पर तमाम कोयला और जली जली हुई लाशें थी, वहां वो सब परिस्थिति हमें दिखाई दी जब अंदर गए नहाने के लिए। वहीं कहा बुड्डी लगा लो, और वहां नहाने के बाद जब वापस आए, आने के बाद फिर वहां जो कार्यक्रम हुआ, भैया आप बात करने लगे हमें लगता है। हेलो, आपकी आवाज कनेक्शन टूट गया? आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही? हाँ। जी। फिर ये हुआ कि जब पंडित जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उनको भी हम सोचे कि चलो ठीक है 1500 उनको दिए हैं तो 1500 उनको भी दे दें। तो हमसे बोले कि धानुक और पंडित को बराबर कर दोगे, हमको तो ज्यादा कुछ चाहे जितनी कुछ थोड़ा ही ज्यादा मिले, ज्यादा मिलना चाहिए, हम बड़े हैं वो छोटे हैं, ये भी सवाल उठा। और उसने जो फिर बहुत कहने के बाद उसने 2000 रुपए लिए और कहा कि अनाथ दीजिए, अब न मालूम क्या क्या संकल्प पढ़ाया वहां और सबने पैसे दिए। पहला तो ये गुजरा। और दूसरा ये है कि हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं, बहुत कमजोर तबके के लोग, जैसा कहा भैया ने कि दलित साथी, तो लगभग 50% लोग जो है वो गंगा नहीं ले जाते। गांव में ही शमशान है और वहीं पर अपने कब्र खोद करके जिस तरीके से मुस्लिम भाई करते हैं उस तरीके से वो भी उसी जमीन में गाड़ देते हैं, कच्ची कब्र बना देते हैं। अब जमीन को कब्जा करने के लिए उन्होंने पक्की भी बनाना शुरू किया जहां वो गाड़ रहे थे, ये भी खेल है। ये सारी चीजें चल रही हैं। और जैसा आपने आमटे साहब को बताया, बाबा साहब आमटे, मुझे तो वो तरीका वास्तव में बहुत पसंद आया कि एक व्यक्ति की याददाश्त बनी रहेगी और वो जमीन में ही कर दिया जाए, और जमीन में करने के बाद उस पर एक पौधा लगाया जाए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वैसे तो एक बात और समझ में आई है कि अंतिम टाइम में ये बॉडी अगर किसी के काम आ जाए और जो बच्चे हैं उस बॉडी से, हमारी बॉडी से कुछ सीखें और बॉडी दान कर दी जाए तो वो और सर्वश्रेष्ठ है, और आंखें दान कर दी जाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये एक बहुत सुंदर मुझे समझ में आया, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बॉडी बच्चे सीखें और आंखें किसी के लग जाए तो वो देखें, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ये सुंदर काम है। जी जी, चलिए ये बात आपने रख दी। ये बात अभी तक हुई नहीं थी कि किसी बड़े अस्पताल में अपने शरीर को दान दे दें। ये हालांकि मैंने भी वो किया हुआ है, लेकिन अभी तक ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई थी इस चर्चा के दौरान। डॉक्टर पीहू परदेशी कुछ बोलना चाहें इस पे तो हम लोग चाहेंगे उनके भी विचार सुने। अनिल जी, आप जरा माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, डॉक्टर पीहू परदेशी। जी, मेरे अभी कोई विचार तो नहीं है, लेकिन बस मैं ये वही कह रही हूँ कि जैसे किसी भी शव को सिर्फ खुला छोड़ देना, जैसे बोल रहे हैं कि पारसियों में होता है, ये थोड़ा सा हाइजीन के मामले से मुझे ठीक नहीं लगता है। भले ही वो इको फ्रेंडली होगा, लेकिन उससे बीमारियां फैलती ही हैं। तो गाड़ देना तो ठीक है, मतलब अगर जमीन के नीचे, अगर काफी नीचे गाड़ दिया जाए जहां पे इतना मतलब जैसे बदबू ना आए, या फिर अपने आप ही वो कंपोस्टिंग हो जाए और पौधे लगाए, तो ये सही ही है, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं लगती। और मुझे तो पता, जिस तरीके से जलाने की प्रथा में तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है ही। और मतलब मुझे तो जैसे मेरे माता पिता ने तो बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम में हमारा अंतिम संस्कार हो जाए, और उन्होंने अपने काफी ऑर्गन डोनेशन के लिए भी उन्होंने भी प्लेज करके रखे। पर ये सुविधा शायद हर एक को नहीं हो कि वो अस्पताल में जाके ये करवा पाए। शायद हम जो शहरी लोग हैं वही कर पाए। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर गाड़ के शरीर को उसके ऊपर पौधा लगाया जाए, या मतलब उसको उस जमीन को बुक ना किया जाए ताकि वो दोबारा से इस्तेमाल हो सके, भले ही वो एक कम्युनिटी का ग्राउंड हो,
है ना, अपना ही खेत होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना खेत या अपनी जमीन तो हर एक के पास नहीं हो सकती। और हम एक शहर में जैसे हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास रहने को घर है बस, हमारी खुद की जमीन थोड़ी ना है कुछ। तो एक अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें बार बार हो सके मतलब शमशान हो चाहे जैसे भी हो, तो वो अच्छा है एक तरीका। या और पर उसमें ये जरूरी है कि फिर कॉफिन ना हो, कोई उसके साथ हम आर्टिकल्स ना डाल दें, मतलब जैसे पुराने जमाने में लोग यादगार के लिए अपने मेटल और वो चूड़ियां और वो सब डालते थे, मतलब उससे फिर पता नहीं कितना इजी होगा उस चीज का ऑब्जॉर्प्शन जमीन में। तो अब पर ये भी है कि रिचुअल्स बहुत सारे हैं, एकदम से बिहेवियर चेंज तो नहीं आएगा, तो थोड़ा एक ट्रेड ऑफ शायद करना पड़े, बस यही कहूंगी। ठीक है, ठीक है। So, Dr. Purnima, this idea of donating organs to hospital, how, because you are a medical doctor, how, in your observation, how many people or what percentage of people are doing this? Because this seems to be a good way, you know. Yes, sir. Actually, the medical colleges are in very bad need for the bodies. These days, we are really struggling to get bodies. So the number of students per body is becoming more and more. So if people can donate their bodies, it will be a very good service to the science. Like students can learn with the making use of body. In fact, even I am thinking of donating my body to a hospital, to a medical college. But only I want to be sure that it will be treated with respect. Because in some of the places, they don't treat the body with respect. But these days, even medical education people are teaching the students how to treat a body. You know, that is a topic which is taught now, along with the many other things like attitude, communication, and ethics they're teaching. From last year, they've changed the curriculum. So it is a good thing. So in that way, we can help humanity instead of just the body getting wasted. And this donating the organs, actually to donate an organ, your body has to be functioning. Only if you are in coma, you can, at that time, if the patient's relatives, if the donor's relatives make a decision, then like kidney and liver and all can be donated. But once the person is dead, only cornea can be donated. Up to 6 hours, within 6 hours, it has to be taken and properly it has to be taken to the storage. Many of the body, we can't do it after death. It has to be functioning. So you are saying that except for cornea, no other organ can be used if the body is dead? I am not very sure, sir, but as far as I know, because we tell our that's what, even other thing is, I might want to donate my body or anything. It all depends on the people who are there. Like my children, they have to make up their mind. Even if I write it, how much they respect my will, it depends on the people around. एक पॉइंट कहना चाहूंगी, पर ऐसा भी है जैसे अगर मेरे पेरेंट्स ने रजिस्टर किया है, उनके पास एक डोनर कार्ड है, तो मतलब जैसे ही अगर मतलब जैसे हमको पता चले या उनको पता चले, तो वो लोग खुद ही फिर मतलब ये प्रोसेस, वो एक शायद एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है जो फिर आप आगे प्रोसेस करते हैं। ऑर्गन्स का तो पता नहीं, बट हो सकता है पूरी बॉडी अगर की मतलब प्लेज हो, तो फिर वो लोग ही आगे उसका प्रोसेस करते हैं। एंड देन द चिल्ड्रन हैव टू मेक पीस विद दैट, मतलब वो पेरेंट्स का डिसीजन है जो वो देके गए हैं, हम उनके लिए डिसीजन नहीं ले सकते। Yeah, but the other thing is, most of the time the children or somebody, they'll be in so much shocked, they won't remember these things. I feel even in spite of having a card or anything, so this has to be conveyed to other important people like friends or somebody, so they will remind the family, I feel. Because even in my father, when my father died, I wanted to donate cornea, but I totally forgot about it.
And he would not have minded, I am sure. So it happens like that. Making a card does not make, there's no guarantee that the things will be done. And also the person who is donating has to make properly convey the message to the children or the spouse that it is their desire. It is a very much necessary thing. If they respect them, that they have to do it. That communication has to be there. Yes, I agree. Okay, so we have about now 4 minutes. If anybody else wants to make any final comments, हमारे पास अभी 4 मिनट है करीब, तो अगर और कोई अपनी बात रखना चाहे 1-2 मिनट में, तो आपका स्वागत है। प्रकर्ष जुड़े हैं, प्रकर्ष अगर कुछ कहना चाहे तो, नहीं तो आज की बहुत अच्छी चर्चा रही। हमने अलग अलग, हाँ प्रकर्ष कुछ बोलेंगे? जी संदीप जी एंड पूर्णिमा जी, मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट मुझे सब्जेक्ट इतना रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग लगा टाइम के हिसाब से कि डेफिनेटली आई थॉट कि जितना जानना चाहिए इस बारे में वो जरूरी है। तो खासकर इस समय पे, क्योंकि इस समय जितनी डेथ्स हो रही हैं और जितना कुछ बचाया जा सकता है या संभाला जा सकता है वो बहुत जरूरी है, और कितना किया जा रहा है खैर वो तो बहुत क्वेश्चनेबल है। बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में जो आज जितना भी मैंने आप लोगों से सुना है, आई थिंक वो उनमें से बहुत सारी चीजें सिस्टम में कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं सोचने के बारे में। तो वही मेरा की टेक अवे है आज के सेशन से। जी, तो प्रवीण जी आप थोड़ा सा समराइज कर दीजिए जो लोग लेट आए हैं उनके लिए। प्रवीण जी चले गए क्या? अच्छा हाँ, वो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक मैं कर देता हूँ उनके आने तक। हम लोगों ने बातचीत शुरू की। पूर्णिमा बिसिनीर जी डॉक्टर हैं और कर्नाटक की रहने वाली हैं, बरेली के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं। वो लिंगायत समुदाय से हैं जो शिव की पूजा करते हैं लोग, लेकिन उन्होंने और ये धर्म करीब अपने आप को वो हिंदू नहीं मानते हैं, और ये समुदाय या इसका जो धर्म है ये आप समझ लीजिए कि करीब 800-900 साल पुराना है। 800-900 साल पुराना है ये धर्म, और ये लोग मृत शरीर को गाड़ते हैं, ये जलाते नहीं हैं। और ये जो धर्म बना था, इसके जो फाउंडर थे उन्होंने हिंदू धर्म में कई सुधार करके इस धर्म को बनाया था, जैसे कि सिख और बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी हिंदू धर्म में कुछ सुधार करके बनाए गए थे। तो उन्होंने बताया कि उनके धर्म में या उनके समुदाय में लोगों को गाड़ा जाता है। फिर हमारे प्रवीण जी आप आ गए हैं, तो आप समराइज कीजिए। आप थे नहीं इसलिए मैंने समराइज शुरू किया था। फिर आप अभय की बात रख दीजिए और फिर आप इसका समापन करें। प्रवीण जी। हाँ, तो हमारे जो आज के खास मेहमान थे उसमें पूर्णिमा जी हैं जो लिंगायत समुदाय की हैं। जैसा अभी संदीप जी ने बताया कि ये साउथ का एक संप्रदाय है, और जो हिंदू धर्म का होते हुए भी उनकी बहुत सारी परंपराएं हमसे भिन्न हैं। और इसमें एक भिन्नता तो ये है कि ये जो है शवों को बजाय चिता पे जलाने के उनको दफना देते हैं, और वो उसको ज़्यादा उचित समझते हैं कि इस तरीके से बहुत ही प्राकृतिक ढंग से शरीर वापस मिट्टी में मिल जाता है और पर्यावरण को किसी तरीके का नुकसान भी नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत सारे लिंगायत समुदाय के बारे में चीज़ों को बताया, और साथ ही साथ बताया कि इसका क्या रैशनल है कि क्यों वो दफनाई जाती है शरीर। और भी उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो हमारे धर्म में पुरानी परंपरागत दोष आ गए थे, उनको लिंगायत समुदाय ने उससे हट करके बहुत सारे परंपराएं शुरू की हैं। और दूसरे मेहमान हमारे अभय जैन जी हैं। उन्होंने विश्व भर में किस किस के तरीके हैं शवों को अंतिम संस्कार करने के, उसके बारे में बताया। और जैसा उन्होंने बताया कि लकड़ी पे चिता जलाने से बहुत सारा प्रदूषण होता है, और ये अब छोटा मोटा प्रदूषण नहीं है।
बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा प्रदूषण होता है। साथ ही जो है पेड़ों का, बहुत सारी पेड़ काटने पड़ते हैं इसके लिए, और जो उसकी राख बचती है उसको फिर लोग किसी पवित्र नदी में, जैसे गंगा नदी में जाके उसको प्रवाहित कर देते हैं, तो वो भी एक तरीके का पोल्यूशन ही है। तो फिर हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि और कौन कौन से ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके हो सकते हैं। तो उसमें बात निकल के आई कि जो जैसे दफनाने के भी दो तरीके हैं। एक जो मुस्लिम तरीका है दफनाने का, या छोटी जाति के लोग जैसा दफनाते हैं कि वो सीधे शरीर को 7-8 फुट गहरे गड्ढे में खोद कर दफना देते हैं, और वो फिर धीमे धीमे शरीर जो है वो मिट्टी में बदल जाता है। जबकि क्रिश्चियंस और दूसरे वेस्टर्न रिलीजन में थोड़ा तरीका अलग है, वो एक ताबूत बनाते हैं लकड़ी का और उसको फिर जो है वो दफनाते हैं। तो वो थोड़ा एक महंगा तरीका है और उतना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं कहा जा सकता। तो दुनिया भर में अलग अलग तरीके हैं। और फिर बात की गई कि कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो शरीर को किसी ऊंची पहाड़ी पे ले जाकर के ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो जीव जंतुओं का आहार बन जाए। तो ये अलग अलग मतलब जो तरीके हैं वो अलग अलग फिलॉसफी पर निर्भर करते हैं। और जैसा आखिरी में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है, ऐसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम अपने शरीर को मेडिकल साइंस के लिए डोनेट कर दें, जो कि भारत में और दुनिया भर में मेडिकल के लिए ह्यूमन बॉडी की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम अपने शरीर को, जो कि एक तरीके से समाप्त ही हो गया है, अब उसका ज़्यादा मोह करने के बजाय अगर हम अपने जीवन काल में ही उसको किसी मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दें तो वो बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से तमाम जो तरीके हैं आज की डेट में अपने परिजनों के सबको किस तरीके से हम उनका अंतिम संस्कार करें, उस पर आज चर्चा हुई और बहुत ही अच्छी ये चर्चा हुई है। और जो भी तरीके हैं दुनिया भर में अलग अलग धर्मों में, वो एक खास फिलॉसफी से वो गवर्न है और उन तरीकों में चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल है। लोग चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन जैसे हिंदू धर्म में तो चिता पे ही जलती है और उससे बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लोग धीमे धीमे इस बात को समझ रहे हैं। आज हमारे कई जो मेहमान थे और साथ ही कुछ पार्टिसिपेंट्स ने भी इस बात पे सहमत जताई है कि हाँ, ये एक एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है चिता जलाना, और हम दूसरे तरीक़ों पे जा सकते हैं। हमको ख़ास बात है कि अपने सगे संबंधी जिनका देहांत हो गया उनको एक आदर के साथ उनकी अंतिम विदाई करनी है, और वो कोई भी तरीका हो सकता है। आदर किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चिता जलाएँ लकड़ी पर तभी हम उनको सही आदर दे सकते हैं। और भी तरीके हैं, आखिर और बहुत सारे धर्म वाले लोग और तरीके से अपने दिवंगतों को किसी न किसी रूप में श्रद्धांजलि देते ही हैं। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम लोग समाप्त कर रहे हैं। ये सत्र थोड़ा अन्य विषयों से हटके था, लेकिन एक ज़रूरी विषय था। और जब आज कोरोना काल में हम देखते हैं अक्सर अखबार में, टीवी में कि इतनी सारी चिताएँ एक साथ जल रही हैं, तो उसका जो मानवीय पहलू है वो तो है ही, लेकिन उसका पर्यावरणीय पहलू भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस विषय पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। तो सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, और हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके साथ ही हम ये सत्र समाप्त करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी मेहमानों को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू। ठीक है। और जैसा अभय जैन जी ने कहा, वो एक अध्ययन करेंगे और इसकी तुलना करेंगे कि शरीर को सीधे लकड़ी से जलाने में और क्रेमेटोरियम में जलाने में, यानी कि बिजली जो शव दाहगृह है, उसमें उसके प्रदूषण में कितना अंतर है, क्योंकि बिजली भी कोयला जला के बनाई जाती है अपने देश में। करीब 78% बिजली भारत में कोयले से आती है, कोयला जला के। तो अगर आप क्रेमेटोरियम में भी शरीर को जला रहे हैं तो भी प्रदूषण तो आप कर ही रहे, वहां पे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जहां कोयले से बिजली बन रही है वहां पे प्रदूषण हो रहा है। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है, और अभय जैन जी ने कहा है कि वो इसको करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैंने और डॉक्टर पूर्णिमा ने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर,
और अभय जी अगर इस पे कुछ शोध करते हैं तो वो भी इसके ऊपर कुछ लिखेंगे। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस सत्र के लिए आए। Thank you everybody who came for this session on whether it is better to burn or bury a dead body. और अब हमारी अगली मीटिंग है जिसके लिए लोग आना शुरू हो गए, मैं देख रहा हूँ। तो हम अब अपनी जो कोविड हेल्पलाइन सर्विस शुरू हुई है उसकी मीटिंग करेंगे। द कोविड हेल्थ हेल्पलाइन सर्विस दैट वी हैव स्टार्टेड, basically online consultation of patients with doctors, और कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर जो दिए जा रहे हैं लखनऊ और कानपुर में, तो इसके ऊपर हमारी बातचीत होगी। तो जो लोग इस कोविड हेल्थ हेल्पलाइन सर्विस की मीटिंग के लिए आए हैं वो जुड़े रहेंगे, और जो लोग सिर्फ पिछले सत्र के लिए आए थे चर्चा के लिए, वो अब अगर चाहे तो जा सकते हैं और अगर चाहे तो वो इस मीटिंग के लिए रुक भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू डॉक्टर पूर्णिमा। Thank you, sir. Thank you for inviting. Yeah. If you and for want, giving an opportunity. If you want to stay for some time to listen to our COVID health helpline service discussions, Okay, sir. It's up to you. I'll be there. If you have, sure. Otherwise you can. No, sir. I'll stay for some time. Yeah. And Manoj ji, same to you. If you have time, you stay for some time. And otherwise you are free to leave. But do decide the date for discussion on Kerala election results so that we can finalize it. Okay, sir. I will fix the date with after consultation with Advocate Rajashekharan. Yeah. Good. So let us see.